आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। सो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। सो दिस इज़ पार्ट वन। पार्ट वन में हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। सो लेट अस डिस्कस कि हम कैसे करने वाले हैं, राइट। सो इसमें I will read this question and even I will give you few seconds to read questions. After that you can attempt that questions, and even if I do it little bit fast, then you can take some time and pause the video, wait, read properly, answer it, and then you can cross check with my answer. So let us begin. So आज का जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का 15 क्वेश्चंस का सेशन है, हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड टीचर्स डू इफ अ स्टूडेंट इज अनेबल टू आंसर इन द क्लास। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर क्लास में बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा तो टीचर को क्या करना चाहिए, राइट। सो अब हम एक स्ट्रेटजी सीखते हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नोट जस्ट ये वाला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। सो अब हमने आइडेंटिफाई करना है वो तरीका जिससे हम पता कर पाएँ कि हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे हमने नेगेटिव स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो एडवाइज हिम टू स्टडी प्रॉपरली। दिस doesn't seems to be a negative statement, it seems to be a neutral, so let us ignore it first. Punish him, this is a negative statement, तो ये तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, राइट। दिस कांट बी आवर आंसर, राइट। स्कोल्ड हिम, ये भी आंसर नहीं होगा, डांटेंगे थोड़ी ना बच्चे को, राइट। एंड डी वन, इट इज़ अ लिटिल पॉजिटिव, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी द राइट आंसर। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Advise him to study properly is not the right way. We need to understand the root cause. Only if we understand the root cause, then we will be able to take right action for such kind of students. Let us move forward to question number 2. I hope you all can see question number 2 on your screen. Okay. Here's question number 2. Question number 2 है, if you found that many students were deliberately absent on the day of class test, then what should you do? Okay, then again this is the same kind of question. So again we have to find out the negative statement. Stop taking test, it is a negative statement, so this can't be our answer. So this can't be our answer. B, inform the principal and parent of the student about such behavior. This can be done, but this is not the right statement, because we have to deal with our problem, right. हम टीचर्स और पेरेंट्स और प्रिंसिपल सर को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते ना इस चीज़ के लिए, राइट। सो टेक सरप्राइज टेस्ट, दिस वन इज़ अ न्यूट्रल स्टेटमेंट। डी, टेक रीटेस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन दे कम टू द क्लास, ये वाला मुझे थोड़ा सही सा नहीं लग रहा है, सही नहीं है, सो लग नहीं रहा का क्या मतलब है। सी इज़ द राइट आंसर। ओके, प्यारे बच्चों, आपने समझा कि हमें कोई भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट, विद द यूज ऑफ कॉमन सेंस। यू जस्ट नीड टू यूज योर कॉमन सेंस। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. आई होप you all can see question number 3 on your screen right now. Okay, why should one join teaching? This one is an interesting question. आपको टीचिंग ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसी से हम आंसर आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। सो ए इज, टीचिंग इज अ डिग्निफाइड प्रोफेशन. यस, इट इज़ ट्रू. टीचिंग कैन डिमांड फ्री गिफ्ट्स. नो, this is not for demanding free gifts from the students, so this can't be true. Okay. C, one has interest in teaching. This one seems to be correct answer. D, to its parent wish. No, it doesn't make any sense. Dignified profession. Yes, it is a dignified profession. Option number A is right statement, but not for our question. It is not the right statement for our question. Why should one join teaching? If they have interest in teaching only. So C will be our right answer for this question, right. Let us move forward to question number 2. Question number 4. So question number 4 is, if you don't know the answer
इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन देन ओके. सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, अगर आपको आंसर नहीं पता है सो इस केस में हम क्या करेंगे, राइट? सो लेट अस सी. Ignore him, it is a negative statement. Ignore him is a negative statement. Tell him not to ask us question, it is a negative statement. ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, right? Tell him that you will find out the answer and let him know. C seems to be the right answer. This one is the right answer. But we will also check the option number D. Because in some questions क्या होता है, वहाँ पे आंसर्स में all of the above भी आ जाता है, हम सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़ते और ओवर एक्साइटमेंट में हम गलत आंसर्स अटैम्प्ट करके आते हैं. हमें क्वेश्चंस आते हैं बट हम ओवर एक्साइटमेंट में सारे ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो हम डी भी देखेंगे क्या है. डिस्करेज हिम फ्रॉम आस्किंग सच क्वेश्चन, नो इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट. अगर हम डिस्करेज करेंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे, राइट? लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 5. I hope you all can see question number 5 on your screen right now. Okay. Which among the following will make teaching effective? Okay. So हमारे क्वेश्चन है सिंपल बेसिक सा कि इसमें से क्या है जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है, राइट? So let us see. Keep on repeating same topic again and again till student understand it. No, it doesn't make any sense. This is not the right answer. Let me draw it again. Okay. Option number B, give them lot of homework. No, this is not the right approach. Punish student for talking and discussing in the class. No, this is not the right approach. So we are left with option number D. Let us check what statement D says. Give time to student to ask questions and queries after finishing the topic. Oh, this one is the right answer. So यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कैसी अप्रोच यूज़ करी, टीचिंग को इफेक्टिव क्या बनाता है, राइट? सो हमने देखा जहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट थी वो तो हमने हटा दिया. पनिशमेंट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर सी उड़ा दिया है. बी, गिव देम लॉट ऑफ होमवर्क. नो, इट डजंट मेक एनी सेंस. वी शुड गिव देम होमवर्क बट नॉट लॉट ऑफ होमवर्क, राइट? कीप ऑन रिपीटिंग द सेम टॉपिक. ओके, दिस अप्रोच कैन बी यूज फॉर प्राइमरी सेक्शन स्टूडेंट्स but this is not the right approach for dealing with effective teaching, right? Okay, so let us move forward to next question, right? If you have any doubt you can always ask me in the comment section, and we do also have a telegram channel जिसका लिंक आपको हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और YouTube के वीडियो के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा. ओके, सो यू कैन ज्वाइन इट. यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल, ऑल द नोट्स, एवरीथिंग देयर फॉर फ्री. इट इज़ फॉर फ्री. एवरीथिंग इज हियर इन दिस चैनल इज फॉर फ्री. सो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 6. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. ओह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको एक निमोनिक भी बताने वाला हूँ, इसको कैसे याद करना है आपने. सो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्लासरूम एनवायरनमेंट इज ओपन एंड इंडिपेंडेंट. क्लासरूम, ओके, सो क्वेश्चन इज क्लासरूम एनवायरनमेंट is not open and independent at which level of the teaching. Okay, so very simple question. इसमें हमें निमोनिक्स की नीड नहीं होगी, वो अलग क्वेश्चन है. सो यहाँ पे मेमोरी लेवल में इंडिपेंडेंट नहीं होता, राइट? एंड अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता, राइट? आप सबको पता है मेमोरी तो प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों के लिए यूज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग उनसे थोड़ा सीनियर एंड रिफ्लेक्टिव कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स पे होता है. सो मेमोरी में तो हम बच्चे को सिर्फ क्रैमिंग करना सिखा रहे हैं, रटा रहे हैं, बार बार रिपीट करा रहे हैं, लाइक अल्फ़ाबेट ABC, राइट? अंडरस्टैंडिंग में हम थोड़ा होमवर्क दे रहे हैं और थोड़ी टेक्निक को एडवांस कर देते हैं. बट रिफ्लेक्टिव इज़ फुली इंडिपेंडेंट बिकॉज इन रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट आर द पार्टिसिपेंट. स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है एंड एवरीथिंग. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. D is the right answer, both A and C.
Let us move forward to question number 7. I hope you all can see question number 7. चलो थोड़ा अप कर देते हैं, ठीक है. You all can see question number 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है. ऑडियो विजुअल एड्स क्यों यूज होते हैं, राइट? टू डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट. डिस्ट्रैक्शन इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, डजंट मेक एनी सेंस. Distraction is a negative statement. Are more beneficial for slow learner. It might be true. Difficult to use. Not difficult to use. Are meant for higher classes. No, not meant for higher classes. It can be used for everyone. So in this, option number B will be the right answer. अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 ऑन आवर स्क्रीन राइट नाउ. स्टूडेंट्स आर इम्प्रेस्ड बाय टीचर बिकॉज. ओके, काफ़ी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है. बच्चे टीचर की किस बच्चे स्टूडेंट हाँ स्टूडेंट्स टीचर की किस ट्रेड से इम्प्रेस होंगे, राइट? किस चीज़ से इम्प्रेस हो सकते हैं? लुक्स. डजंट मेक एनी सेंस. लुक्स से तो नहीं होंगे. सेंस ऑफ ह्यूमर. इट कैन बी ट्रू बट नो, नॉट हेयर द केस. Sense of humor is not the only thing and not the primary thing. Moral character, yes, but it is not the primary thing, right? So primary thing when it comes to teaching is educational qualification and knowledge. बच्चे तो टीचर की नॉलेज से ही इम्प्रेस होंगे, राइट? अगर स्टूडेंट मेरे जैसा है, आपके जैसा है, तो फिर लुक से भी हो सकता है. So I just use sense of humor, right? Let us move forward to question number 9. What should be done so that latecomers come on time for the class? Okay, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट कमर्स के लिए क्या सॉल्यूशन लाना चाहिए. जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो, यू हैव टू थिंक लाइक अ टीचर. सो उस मोमेंट में आप टीचर बन के सोचा करो, राइट? सो आंसर आपका सही ही आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट शुड बी डन फॉर लेट कमर्स? ओके, पनिश देम. नेगेटिव स्टेटमेंट, सही नहीं हो सकता. डू नॉट लेट देम एंटर इन द क्लास. नेगेटिव स्टेटमेंट. इन्फॉर्म देयर पेरेंट. इन्फॉर्म देयर पेरेंट सीम्स टू बी राइट आंसर. एंड रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल. दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. yes, in this report to the principal doesn't make any sense. We should inform their parent so that their parent can take some action and send them school on time, right? So let us move forward to question number 10. Democratic teaching is. So democratic teaching is teacher center, learner center, teaching aptitude. 5 point. Okay, there is something wrong with this option. So teaching aptitude 3.7 not supposed to be here. So let me make correction. Teaching aptitude. Okay, let us focus on our answer while I make. Okay, this is not supposed to be here. This is by mistake, right? So let me do correction. I hope it's gone now, right? Okay, better. So this now you can see your question. Question number 10. Democratic teaching टीचर सेंटर होती है, लर्नर सेंटर होती है, सब्जेक्ट सेंटर होती है, एक्सपीरियंस सेंटर होती है. सो डेमोक्रेटिक टीचिंग तो हमेशा लर्नर सेंट्रिक होगी, लर्नर सेंट्रिक होगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक टीचिंग में अगर लर्निंग सेंट्रिक होगी तो स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, राइट? यस. सो दिस विल बी योर राइट आंसर, लर्नर सेंटर. डेमोक्रेटिक टीचर में स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंटली, सो वी कॉल इट डेमोक्रेटिक टीचिंग इज अ लर्नर सेंट्रिक. So let us move forward to question number 11. If a teacher is not in the good mood, not in the good mood, if teacher is not in the mood of teaching due to his poor health, fatigue or any other reason, then she should. Okay, अगर टीचर कभी थका हुआ है या उसका पढ़ाई का मन नहीं है, so what should he or she do? Okay, ऐसा हमारा क्वेश्चन है. अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है. Ask his fellow teacher to take extra class. This is not the right statement.
ये राइट स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि दूसरा फेलो टीचर्स अवेलेबल होगा या नहीं होगा उस टाइम पे. लेट स्टूडेंट प्ले एंड एन्जॉय, दिस डजंट ऑल्सो मेक एनी सेंस. लेट स्टूडेंट प्ले, सो आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा. टीच स्टूडेंट नो मैटर हाउ ही फील्स, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच बिकॉज इट विल decrease the productivity of the teacher, right? So simply D जो आपका ऑप्शन है, tell his or her experience and other motivational story the student. So इसमें टीचर का प्रोडक्टिविटी भी कम नहीं हो रही है एंड इवन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी कम नहीं हो रहा है. दिस इज द राइट अप्रोच. ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके, सो आई एम वेरी न्यू टू दिस ऑनलाइन टीचिंग. So if you face any problem, any issue, so you can always feel free to comment and I can improve in my next video. So let us move forward to next question. Question number 12. Evaluation should be okay. Evaluation कैसी होनी चाहिए, हमारे क्वेश्चन ये है, राइट? इसमें भी देखेंगे हम क्वार्टरली होनी चाहिए. आई डोंट थिंक सो. फिर तो हमें क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगी. एनुअल होनी चाहिए. एनुअल तो होनी ही चाहिए, बट क्या बस एनुअल ही होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो. मंथली, yes, it seems to be right approach, but we call it continuous. Continuous evaluation needs to be there. Even there are few evaluation which needs to be used even before teaching, so you can get to know कि student को अभी कितना आता है. तो evaluation should be continuous. और क्वार्टरली, एनुअली, मंथली तो इस कंटिन्यूस इवैल्यूएशन का पार्ट हो ही जाएगा, राइट? ये सब तो इसका पार्ट हो ही जाएगा कंटिन्यूस का. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज 13. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 इज एन इम्पोर्टेंट question. Okay, so this is question number 13. It is very basic, important, and UGC नेट में तो ये क्वेश्चन बार बार आता ही है. अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, टॉपिक तो रिपीट होना ही होना है. सो इसको आपने काफ़ी अच्छे से समझना है. सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें बच्चे को हम बार बार रिपीट कराते हैं और उसके थ्रू वो लर्न करता है. सो मेमोरी लेवल हमारे दो ऑप्शंस में है, राइट? ऑप्शन नंबर बी एंड डी, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी एंड डी में हमारा है ओके मेमोरी, देन अंडरस्टैंडिंग. मेमोरी के बाद अंडरस्टैंडिंग ही आएगा, तो ये वाला सही है. ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट. ओके, बी राइट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पहले आया. रिफ्लेक्टिव सपोज टू बी इन द एंड, राइट? सो हमें रिफ्लेक्टिव एंड में देखना है. रिफ्लेक्टिव एंड में सिर्फ ऑप्शन डी में है. मेमोरी बिगिनिंग होती है स्टूडेंट की, अंडरस्टैंडिंग फिर सेकेंडरी एजुकेशन में, एंड फिर हायर एजुकेशन में यूज़ होता है रिफ्लेक्टिव लेवल. तो दिस सपोज टू बी द राइट आंसर. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 14. हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्क्रीन पे है. व्हाट शुड बी डन इफ अ स्टूडेंट डोंट कंप्लीट होमवर्क रेगुलरली. अच्छा, इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क regularly, what should a teacher do? Okay, let us read all the options, then we will decide which one is right. Complain about them? No, this is not the right answer. Tell them to go home, only come after the completing the work? No, this is not right statement. This is not the right approach. Okay, discuss the problem with them privately after the class, and okay, scold them. So okay, D is not the right way because it is a negative statement, and negative statement most of the time सही नहीं होती है. बाकी डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. A, B, D is not the right answer. Let us analyze question number C. Discuss the problem with them privately after the class and try to help them. Yes, this one is the positive statement. Discussing it privately will make student feel more comfortable and more trustworthy, and it will even not make them feel insulted, and they can work on their problems. So option number C will be right answer for this question. Let us move forward to question number next. Okay, हम question number 15 पे आ गए हैं. 15. If son of a famous personality is your student, then you should. Okay, ये भी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है
कि अगर कोई सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनैलिटी, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी का बच्चा आपकी क्लास में है तो आप क्या करोगे? ओके, सो अब देखते हैं। इग्नोर हिम, डजंट मेक एनी सेंस। इग्नोर क्यों करेंगे हम किसी बच्चे को? आस्क हिम फॉर द गिफ्ट, नहीं, मेरे जैसे टीचर तो गिफ्ट नहीं मांगेगा, आपके जैसे मांग भी सकते हैं। सो वी विल नॉट इवन आस्क द गिफ्ट फ्रॉम देम। प्ले मोर अटेंशन टू हिम, पे मोर अटेंशन टू हिम, नो, उसको ज़्यादा ध्यान क्यों देंगे हम, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा भाई। कंसिडर हिम सेम, ओके, दिस इज द वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन। उसको हम सेम कंसिडर करेंगे, सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला पापा की परी वाला। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू एंगेज स्टूडेंट। ओके, सो 16 क्वेश्चन का आंसर होगा, लेट अस रीड ऑप्शंस देन वी विल डिसाइड। सो ओके, टीचिंग एड्स, हाँ, टीचिंग एड्स लाइक ऑडियो विजुअल्स है ना, स्मार्ट बोर्ड, all these technique, yes, this is useful. Even activities or etc. No, activities are not part of the teaching aids. Teaching aids are like smart board etc, right? They can be helpful. Real life examples, yes, giving real life example can help a lot to the student. Discussion in the class, yes, absolutely right. So all of the above will be the right answer. अब कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, वो टीचिंग एड्स देखेंगे और टिक करके आ जाएंगे ए। कुछ उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होंगे, वो बी देखेंगे बी लगा देंगे, सी देखेंगे सी लगा देंगे, और ऑल ऑफ दी अबव नहीं देखेंगे। सो आप जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको पूरा क्वेश्चंस केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं, आंसर्स भी ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे सारे ही सही थे, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कई बार आपको 1-2 नंबर से एग्ज़ाम में पीछे रख सकती हैं, राइट। ओके, थोड़ा सा जूम इन हो गया था मेरे से। ओके ओके ओके, अब हम 17 क्वेश्चन करने वाले हैं। 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है अभी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर कैन बी ट्रेन, टीचर आर बोर्न, ऑल ऑफ द अबव। नॉट ट्रू, ओके, हमें यहाँ पे नॉट ट्रू देखनी है, तो बाकी सारी ट्रू होंगी, एक नॉट ट्रू होएगी, राइट। सो टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, राइट। टीचर कैन बी ट्रेन, सही बात है, टीचिंग एक आर्ट फॉर्म है, राइट। टीचर कैन बी ट्रेन, टीचर्स की ट्रेनिंग हो सकती है, जो हम पीएचडी करते हैं, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेनिंग, राइट। एंड जो स्कूल टीचिंग के लिए बीएड का कोर्स है, वो भी टीचिंग के लिए कोर्सेज हैं, राइट। तो ट्रेनिंग तो दी जा सकती है टीचर्स को। टीचर्स आर बोर्न, नो, टीचर्स आर नॉट बोर्न, टीचर्स आर मेड। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी अ नेगेटिव स्टेटमेंट। सो सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे ऑलरेडी नोट मेंशन था, राइट। सो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जो एग्ज़ाम में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं, राइट। वैसे तो आप हमारे चैनल पे आते हो पढ़ने के लिए, तो आपसे ऐसी छोटी सी मिस्टेक्स की हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड टीचर डू इफ़ अ स्टूडेंट क्रिटिसाइज एनी अदर टीचर इन हिज प्रेजेंस। ओके, सो अब आप टीचर बन जाओ एक सेकंड के लिए। सोचो आपके सामने कोई दूसरे टीचर के बारे में स्टूडेंट क्रिटिसाइज कर रहा है उनको, राइट। सो आपका क्या एक्शन होगा? सो लेट अस सी कैसे कैसे आंसर्स आ रखे हैं। जॉइन देम इन क्रिटिसाइजिंग, नो, इट डजंट मेक एनी सेंस। करेज देम टू शेयर इट टू प्रिंसिपल, नो, वी विल नो, हम इनकरेज क्यों करेंगे, राइट। एंड पनिश देम, स्कोल्ड देम, ओके, पनिश देम भी नहीं होगा। तो ये सारे तो नेगेटिव से ही हैं, पहले तीनों तो मुझे नहीं लग रहे हैं। एक बार ही हम फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या कहता है? स्कोल्ड देम एंड देन टेल देम नॉट टू क्रिटिसाइज एनीवन। ओके, D1 इज़ द राइट आंसर, D1 इज़ द राइट आंसर। उनको डांटेंगे और बोलेंगे कि ऐसे क्रिटिसिज्म नहीं करना है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, इन द टीचिंग learning process, which of the following is dependent variable? Okay, question number 19, which one is dependent variable? Student is dependent variable, teacher is independent variable, and student is dependent variable. So in this one,
इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके, डिपेंडेंट स्टूडेंट होगा, राइट। डिपेंडेंट वेरिएबल की जब बात हो रही है तो स्टूडेंट होगा। दिस वन इज द राइट आंसर। टीचर इंडिपेंडेंट होता है एंड राइट, सो स्टूडेंट। ओके, ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया तो ओके, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, मैच द फॉलोइंग। ओके, नाउ आई हैव टू चेंज द टूल। which color? Okay, red only. No, green. We will use green. So इसमें मैच दी फॉलोइंग है। इस मैंने आपको एक निमोनिक वाला क्वेश्चन बताया था ना, वो अभी यहाँ पे आया है 20। सो मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताऊँगा, उससे आपको ये क्वेश्चन लाइफ लॉन्ग याद रहने वाला है। ओके, मेमोरी लेवल किसने दिया था, रिफ्लेक्टिव किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया था। सो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव करेंगे। रिफ्लेक्टिव था जो हंट ने दिया था। फिर मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन ने दिया था। सो अब मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको नेमोनिक्स बताने वाला हूँ, तो अब मैं आपको नेमोनिक्स बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। सो जब भी हम हंटिंग करते हैं, हंटिंग कैसे करते हैं, हंटिंग करने के लिए हमें वेपन चाहिए, है ना, और वेपन को चलाने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए, राइट। सो जब भी रिफ्लेक्टिव की बात होगी तो हंट का था, रिफ्लेक्टिव हंट ने दिया था। मेमोरी की याद होगी, कई बार हम ऐसा बोलते हैं बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, राइट। सो मेमोरी याद करना होता है बाय हार्ट हर्बर्ट, राइट। सो मेमोरी वाला जब सीन आएगा, मेमोरी लेवल का क्वेश्चन आएगा, हर्बर्ट कर देंगे। रिफ्लेक्टिव का आएगा हंट कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग का आएगा मॉरिसन कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग सेकंड लेवल होता है, पहला मेमोरी होता है, सेकंड अंडरस्टैंडिंग होता है, लास्ट वाला रिफ्लेक्टिव होता है। सो एम फॉर मिडल, राइट। सो ऐसे भी याद कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाला मिडल में आता है, मॉरिसन का है, क्योंकि एम से मॉरिसन मिडल, राइट, अंडरस्टैंडिंग। सो आई गेस आप हंट वाला तो आप भूल ही नहीं पाओगे, रिफ्लेक्टिव हंट, मेमोरी हर्बर्ट, ये भी नहीं भूल पाओगे, और मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वन वाज द निमोनिक्स। Let us move forward to question number next. Question number 21. A good teacher is. Okay. A good teacher is focus on all-round development of the student, follow the discipline strictly, punishes the student. Punishing the student is a negative statement. Punishing the student is a negative statement. Make student do his work. नहीं, अपना काम कैसे कराएंगे स्टूडेंट से? This is not the right way. राइट। सो ये दोनों तो सही नहीं होंगे। ऑप्शन ए एंड बी देखते हैं। 21। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फोकस ऑन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, फॉलो डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली। नो, दिस वन इज नॉट द राइट। 21 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 22. I hope you all can see question number 22 on your screen right now. Okay. If a student is going through any problem and he want to share it with a teacher, then teacher should take a leave from school by making excuse of poor health. Okay. So इसमें हमारा जो क्वेश्चन है ये है, students going through any problem want to share it with teacher, then teacher should. Okay. यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये टीचर के साथ शेयर करना चाहता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें टीचर क्या कर सकता है? टेक अ लीव, नो, नेगेटिव स्टेटमेंट, टेक अ लीव तो नहीं होगा, टेक अ लीव इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, तो 22 का ए, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, राइट। Not to ask permission from the head of okay, ask permission from the head of student, ask for the permission of the head of the student, not to tell if student is going through. Question number 22. Okay, I guess this question is not the right. Okay, there is something wrong, this question is not the right. So ये क्वेश्चन हमारा राइट नहीं है, इस क्वेश्चन को हमें अनफॉर्चुनेटली कट करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा राइट नहीं है। ओके,
ये क्वेश्चन के ऑप्शंस राइट नहीं है, तो हम ऑप्शंस कट कर देंगे और ओके ये क्वेश्चंस के हमारे आंसर गलत हैं। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर देता हूँ एंड जब भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आई विल इंक्लूड दिस क्वेश्चन नंबर 22. Okay, so for today I'm dropping this question for today. Okay, let us move forward to question number, because we don't have the right answer. ये जो options है next वाली questions के हैं, right? So let us move forward to question number 23. For attending a seminar, टीचर शुड, ओके अगर एक टीचर को सेमिनार अटेंड करना है, टीचर को क्या करना चाहिए इस केस में, राइट? ओके लेट अस सी क्या करना चाहिए. टेक अ लीव फ्रॉम स्टूडेंट मेकिंग एक्सक्यूज ऑफ पुअर हेल्थ, नहीं, दिस इज द नेगेटिव स्टेटमेंट. आस्क फॉर परमिशन, नोट आस्क, नहीं, परमिशन नहीं कोई पूछनी है. टेल एनी अदर फेलो टीचर टू टेक द क्लासेस ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, नो. ये सारी स्टेटमेंट डजंट मेक एनी सेंस. ओके अगर सेमिनार अटेंड करना है टीचर को तो क्या करना चाहिए? आस्क फॉर द परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन. सो उसके अपने हेड से परमिशन लेके तब सेमिनार अटेंड करना चाहिए, राइट? ऑल दीज आर नॉट राइट आंसर. ओके सो after 23 we all around development of the student, follow discipline. Okay so I guess this doesn't make any sense. ये भी यहाँ पे गलती से आया हुआ है, so मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ. doesn't make any sense. So let us move forward to 24. Question number 24. Which of the following domain is related to attitude, value and motivation? Okay, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का टॉपिक है हमारा. सो इसमें 24 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, राइट? सो लेट अस सी. यहाँ पे बात हो रही है एटीट्यूड की, एटीट्यूड, वैल्यू एंड मोटिवेशन. जब भी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अफेक्टिव डोमेन पे जाना पड़ेगा, राइट? सो डी विल बी आर राइट आंसर. एज कोग्निटिव डोमेन में तो ये नहीं आएगा, लर्निंग में भी नहीं आएगा, साइकोमोटर डोमेन में भी नहीं आएगा, राइट? सो अफेक्टिव डोमेन वुड बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर लास्ट फॉर टुडेज सेशन. सो I hope you all can see question number 25 on your screen. Okay. Question number 25 is, which of the following statement is true about teaching learning process? Okay. यहाँ पे कुछ statement है teaching learning process के बारे में और हमें देखना है उसमें से कौन से वाली सही है. So, okay. Teacher and student are dependent variable while parents are independent. No. टीचर एंड स्टूडेंट दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होते हैं, राइट? दिस इज नॉट राइट. सो टीचर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ राइट. स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंटरवेंटिंग वेरिएबल. यस, दिस वन इज़ द राइट आंसर. बट हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको बताया है, जो हमें एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि कई बार ऑल ऑफ दी अबव भी आंसर होता है, कई बार ए एंड बी इस टाइप के कॉम्बिनेशन में भी आंसर्स होते हैं. तो एक अच्छी हैबिट है सारे ऑप्शंस पढ़ने की जो हमें अभी से लेके चलनी है. ओके तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टूडेंट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर्स आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सब्जेक्ट मैटर इज इंटर. आई होप सी इज स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट, टीचर आर डिपेंडेंट. नो, ये एग्जैक्ट अपोजिट हो गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत ही होगा. दिस इज नॉट द राइट वन. सो ओके इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं. रेड वन इज दिस इज नॉट द राइट आंसर. नन ऑफ दी अबव नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बी हो चुका है, नन ऑफ दी अबव तो हो ही नहीं सकता. ओके सो विद दिस आज हम 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं कंप्लीट. एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था बट आई विल इंक्लूड इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मॉक टेस्ट देना, सो आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं ऐसे वीडियोस के लिए। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी। एंड जो करेक्शन मैंने इस वीडियो में कराई हैं वो मैं आपको वीडियो में करके ही अपलोड करूँगा। सो डोंट वरी अबाउट एनी करेक्शन फॉर द स्टडी मटेरियल। And as this is my first video on my channel, you are feel free to give your suggestions in the comment section. You all are welcome to give suggestions. With this I would like to end my video and मिलते हैं जल्दी ही next video में, and please do give feedback so I can improve my content as well as the teaching method. Thank you so much for your time.